सूर्या, पिछले 2 साल से आप नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं T20 फॉर्मेट में। इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एज ए यू बीइंग द प्रीमियर बैट्समैन ऑफ दिस इंडियन T20 साइड। किस तरह से देखते हैं, मतलब अपने रोल को यहाँ पर? विकेट जिस तरह से चैलेंजिंग है, अपने आपको पर्सनली गेम बदलना पड़ा है, उसके बारे में बताएं। आई मीन जैसे आपने बोला कि 2 साल से वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हो, तो आपको डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग करने आना चाहिए और अपने गेम को कैसे आप चेंज कर सकते हो, उस टाइम पे टीम को क्या नीड है, अगर वैसे आप खेल सकते हो तो आई थिंक वो एक अच्छा बैट्समैनशिप डिस्प्ले करता है। और वही मैं ट्राई करता हूँ, अगर विकेट थोड़ा डिफ़िकल्ट है और अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे जैसे मैं पहले बैटिंग करते आ रहा था, तो आई ट्राई टू चेंज इट। Surya, your range of full range of shots were not possible in US, at least in New York. Mein. So, are you happy coming here? And what do you think of the pitch here? I was happy playing there as well. It's not that we weren't happy playing there, but we were playing for the first time. So yes, the conditions were different and little challenging as well. But we've played here. We know the conditions here, how they react, how they act. So yeah, very happy to be here. Here or there? Here or there? Here it was covered. It rained when I went onto the field while fielding. But yeah, it looks better. The same question I had, because yesterday we had a look at the wicket. It was very brownish, which is rare to have here in Barbados. Are you surprised? Not really. I mean, last time also when we were here for ODIs, it was a similar kind of wicket. But I don't think there has been a lot of cricket played here in the last 10-15 days. We said the practice wickets were also good, so we are expecting that the game wicket will also be much better. I was just an extension of that question. Have you noticed a difference in terms of the practice pitches that you got in the US and here? And if you have, are you relieved that the practice pitches probably may have improved while you're practice pitches, yeah, they were a little spicy there. It was fresh. They made the conditions post. I mean, after they got to know that there's a World Cup over there, and here they have been making pitches regularly. So, but yeah, the practice wicket here were much better from what we did in USA. It was a little spicy, but yeah, much better. Good afternoon, Surya. When the ball is not coming onto the bat as readily as it typically does in T20 cricket, when you have to generate the power, especially when you're playing these ramp shots and trying to scoop and you don't have enough pace on the ball, how do you sort of adapt to that situation? Hit the gap and run hard. I mean, as I said, it's difficult to generate that force when there's no pace on the wicket and when someone has read your game nicely. So at that time, you have to be very smart how you want to extend your innings. If you can't bat the way you have been batting in the last 1 year or 2 years, you have to change according to the situation, what team demands at that moment, and talk to your partner who's inside, calm your nerves down, and then take the innings ahead. Hi Surya. Hello. You hit a 49 ball half century in New York and it was not like you at all. Can you take us through what was going on in your mind and how did you manage that kind of grit while you had to limit your stroke plays? When we thought about it, I knew post power play finding boundaries is going to be difficult on that ground with the wind, with the slow outfield. So we had a plan in mind after power play that just try and hit the gap, run hard, and it was it was a little difficult track to bat on, yes, but at that day the situation was different. We had to be batting till the end, keeping the wickets in hand. So that's what was running in my mind. The same thing, I spoke to Shivam as well. We were just away from 1 or 2 hits, and yeah, we got the game that way. Surya, just an extension of one of the previous questions regarding gameplay against spin. With Afghanistan and Bangladesh being there on your group, you expect a lot of spinners to, as face. So just wanted to know that maybe you were, as a batter, personally you are trying to play more cross-batted short sweeps, reverse sweeps, or maybe acclimatize according to the situation of the game. That has always been my strong point. I mean, if the wicket is slow, spinner is bowling, or if the wicket is good, that has always been my game. I've tried to play the same way what I do in the practice sessions, and I mean, yeah, everyone has a different game plan.
looking at the wickets against the spinners, all have different mindsets. But yeah, when they come together and bring the skill set, I think it'll be good and it's nice. Hi, Surya. Afghanistan has done giant killing in this T20 tournament. Defeated New Zealand also. Your next match is against them, first match of the Super 8. How do you guys plan up? How you guys are planning to shape up your match? We do obviously have plans against Afghanistan, but we are completely focused and have our strong points really well. We're working on that, and I mean we do think about the opposition, but yeah, at the same time, at the end of the day, you should know what your strong points are and back it. सूर्या, जब हम विराट और रोहित दोनों ओपन करते हैं और अगर बाय चांस वो दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो क्या जब आप मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं या ऋषभ के साथ खेलते हैं तो क्या वो खेलने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि दो आपके बड़े बल्लेबाज जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं वो आउट हो जाते हैं, या फिर उनमें से कोई एक खेलता है? क्योंकि अभी तक विराट नंबर 3 तक खेलते थे तो एक डेप्थ एक्स्ट्रा मिल जाता था, आपको अपने शॉट्स खेलने का और ज़्यादा मौका मिल जाता था। ये दोनों जब बल्लेबाज ओपन कर जाते हैं और विकेट जल्दी गिर जाता है जैसा अभी तक होता आ रहा है, क्या खेलने में आपके शॉट्स जाते हुए आपके जहन में या आपके डिमांड्स जो टीम मैनेजमेंट आपको कहती है, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट है, हम लोग ट्राई करते हैं इसको उस फॉर्मेट को ही वैसे ही खेलने के लिए। और आउट अगर 2 हो गए 3 हो गए, एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हो तो रन्स तो डालने ही है स्कोर बोर्ड पे, तो इंटेंट आपका चेंज नहीं होता है। तो हम लोग दोनों वही ट्राई करते हैं कि सेम इंटेंट से बैटिंग करें और बोलते रहते हैं एक दूसरे को कि पॉजिटिव रूट लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन हैविंग अ डबल थॉट। और अंदर जो 2 लोग बैटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने भी यही बोला है, कैप्टन ने भी यही बोला है कि वो दोनों लोग बेस्ट हैं जो डिसीजन ले सकते हैं टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इंपॉर्टेंट है वो टाइम पे, तो वो हम लोग सोचते हैं और फिर उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। नमस्कार दादा। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की सब लोग सोच रहे हैं कि बैटिंग बैटिंग बैटिंग, लेकिन स्लिप में भी तो आप खड़े हो, बॉल चक करके निकल नहीं रहा है, डाई डाउन हो रहा है, कैच पकड़ने के बाद आपके चेहरे पे वो खुशी नज़र आई, इम्पोर्टेंट कैच पाकिस्तान मैच में जो 50 के बाद भी नज़र आई। फील्डिंग के बारे में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी कुछ बोलो यार। वो एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है फील्डिंग एक पार्ट है जो नॉन नेगोशिएबल है, तो उसके ऊपर बहुत मेहनत की है सब लोग ने, देख के लग रहा है सब लोग ने अच्छी मेहनत की है। और ये जो गेम्स होते हैं, जो क्लोज टाइट गेम्स होते हैं, उसमें जो हाफ चांसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही लास्ट में गेम का फैसला कर देते हैं। तो उस चीज़ के बारे में हमने अच्छे से सोचा हुआ है, सब लोग अपना अपना टाइम से आके फील्डिंग कोच के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फील्डिंग में जब आप वो 2 रन रुकाते हो, 4 रन रुकाते हो, एक अच्छा कैच लेते हो, तो एक पॉजिटिविटी स्प्रेड हो जाती है टीम में। सो बैटिंग करते हो तो होती ही है, अंदर सबको अच्छा लगता है, बट जब फील्डिंग करते हो आप और ऐसा कुछ कैच लेते हो या एक अच्छा रन आउट मारते हो या रन रुकाते हो, तो वो पूरे 9 लोग में स्प्रेड होती है, 9-10 लोग में। तो एक वो चीज़ है जो हम लोग ने इस बार थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया है और अच्छा लग रहा है देख के। सिराज तो नहीं है यार, सिराज भाई खाना खा रहे। सॉरी सूर्या, ओवर द इयर्स आप टीम के साथ जो आपका रोल चेंज हुआ है, उस ट्रांजिशन के बारे में अगर आपने बताया कि जब आप ड्रेसिंग रूम में आए थे यंगस्टर और आज आप जहाँ खड़े हैं, स्पेशली जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम टूर्नामेंट का शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे आप जब व्हेन यू लुक बैक अपने करियर को और जहाँ आप टीम में जो आपका रोल है, आप अगर आप बता सकें कि हाउ इट हैज़ चेंज ओवर द इयर्स और आज टीम कितना आपके ऊपर इस चीज़ के लिए रिलाई करती है? पाजी एज अ यंगस्टर तो नहीं आया था बट हाँ, मैं इतना डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ था, IPL का सीजन्स खेला हुआ था, तो मुझे पता था व्हेन आई वॉक इनटू दैट ड्रेसिंग रूम क्या एक्सपेक्टेड होगा मेरे से, व्हाई आई एम पिक्ड किसी के जगह पे, एंड आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि मुझे कैसे खेलना है वो नंबर पे। अगर 4 नंबर पे अगर मुझे खेलना है वैसे, तो मुझे कैसे खेलना है, कैसे खेला है लोगों ने। और मैं कभी भी यही सोचता हूँ, जो T20 का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 to 14, 7 to 16, जहाँ पे टीम्स ट्राई करते हैं गेम कंट्रोल करने के लिए, तो वो चीज़ के बारे में मैंने बहुत सोचा था पहले, बिफोर मेकिंग माई डेब्यू फॉर इंडिया, कि यहाँ पे अगर मैं अच्छा करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता हूँ, तो मैं एक गेम चेंजर बन सकता हूँ वो दिन में। एंड व्हेन आई केप्ट डूइंग इट रिपीटेडली, तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक यही है मेरा गेम प्लान गोइंग फॉरवर्ड।
क्योंकि पावर प्ले में आगे बैटिंग तो यू नो द प्लेयर्स आर इनसाइड, आप अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के बाउंड्री मार सकते हो, बट इन बिटवीन 7 to 15 कहाँ आप बाउंड्री मार सकते हो, 6 देख सकते हो, वेयर कैन यू स्टेप अप एंड टेक द टीम अहेड एट दैट टाइम सो दैट इट गेट्स ईजियर एट द डेथ साइड ऑफ इट. बट ये इस बारे में मैंने बहुत सोचा और इसके ऊपर मैंने बहुत प्रैक्टिस भी की है, मैच सिमुलेशंस किए हैं बहुत सारे. तो अब जब मैं मैच में बैटिंग करने को जाता हूँ, आई नो द सिचुएशंस, तो उसके हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ कि अगेन वो दिन मैं कैसे गेम चेंजर हो सकता हूँ टीम के लिए, एंड आई जस्ट ट्राई एंड डू दैट. हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम फिर से ट्राई करेंगे. सूर्य भाई, आपने यहाँ वनडे सीरीज़ भी खेली है, तो पिच लगता है कि आपको यहाँ ज़्यादा टर्न होगी. और दूसरा सवाल ये है कि अब थकाने वाला टूर है, क्योंकि एक या दो दिन नहीं रुकना है एक शहर में, तो ये कितना माइंड पे स्ट्रेस डालेगा आप लोगों के? मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के बॉडी पे कैसे ध्यान देते हो, क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम मिला, अभी सुपर 8 में इतना टाइम नहीं है. सो यू प्ले अ गेम, यू ट्रैवल अगेन अगले दिन, तो रिकवरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस सेशंस इतने मिलेंगे नहीं, जो भी है यहाँ पे ही था, मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट. और सब अभी प्रोफेशनल वर्ल्ड है इतना, तो सब लोग ध्यान देते हैं अपने अपने इस पे, कैसे रिकवरी करना है, कैसे सोना है. एंड हम लोग ज़्यादा एक्चुअली सुबह के T20 खेलते नहीं है. डे लाइट में वी आर यूज टू प्लेइंग इन द नाइट, और डे गेम्स मुश्किल से 3-4 होता है, तो उसमें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है खुद का. वो बस 3 घंटा थोड़ा पुश करके फिर तो 1.5 दिन का आराम मिलेगा ही. क्या चीज़? वो तो थोड़ा डिफरेंट दिख रही थी उस टाइम पे, इस टाइम इट्स लुकिंग अ लिटिल डिफरेंट. तो देखते हैं, अभी 20 तारीख के बाद देखते हैं क्या होता है. थैंक यू. Thanks everyone. Thank you.